بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग मनारुस सबील फी शरह दलील लिशेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें किताब सलाह पढ़ रहे हैं। और किताब सलाह में हम लोग फसलुन फी सलातिल मुसाफिर, फसलुन फी सलातिल मुसाफिर, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये आज का हल्का नंबर 114 है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी सलातिल मुसाफ़िर। क़स्रु सलाति रुबाइय्यति अफ़ज़ल मिन इत्मामिहा। नस्स अलैहि लिअन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुलफ़ाअहु दावमू अलैहि। व रवा अहमद अन इब्न मरफ़ूअन इन्ना अल्लाह युहिब्बु अन तु'ता रुख़सुहु कमा यकरहु अन तु'ता मअसियतुहु वला तुक़स्सरु al-maghrib वला as-subh इजमाअन। क़ालहु इब्न al-मुंज़िर लिमन नवा सफ़रन मुबाहन अय लैसा हरामन वला मकरूहन वाजिबन काना कहज्जिन व जिहादिन मुतअय्यिनैनि मस्नूनन कज़ियारति रहिमिन अव मुस्तवा त्वरफ़ैनि कतिजारतिन लिमहल्लिन मुअय्यनिन फला युक़स्सरु हाइमुन वला यदरी ऐन यذهب वला साइहुन ला यक़सुदु मकानन मुअय्यनन वनहविहिमा। यबलुगु 16 फ़रसख़न तक़रीबन वहिय 4 बुर्दिन वहिय यौमानि क़ासिदानि फ़ी ज़मनिन मुअतदिलिन बिसैरिल अथक़ालि व दबीबिल अक़दामि लिहदीथ इब्न अब्बास मरफ़ूअन या अहल मक्कत ला तुक़स्सिरू फ़ी अक़ल्लि من 4 برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. انتهى. إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 أو صلى خلف من يتم. نص عليه لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي 2 حال الانفراد و4 إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. رواه أحمد. काफी शेर और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ें और पढ़ें। ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه قاله في الكافي أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر أو أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم
أتم. ذكره الإمام أحمد قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لأن حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع. چلیے یہاں تک ٹھیک بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ شرح منار السبیل میں کتاب الصلاة اور کتاب الصلاة میں فصل فی صلاة المسافر پڑھ رہے ہیں. ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 114 ہے. مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصتیں رکھی ہیں کیونکہ سفر مظنۃ المشقہ، یعنی اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ مسافر بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتا ہے. کبھی کھانے پینے میں دقت ہوتی ہے، کبھی سفر کی تھکان ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں ہو پاتی، کبھی موسم کی سردی گرمی اسے پریشان کرتی ہے. بہرحال سفر جتنا بھی آسان ہو، سفر تو سفر ہی ہے اور سفر مشکل ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سفر میں کچھ رخصتیں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی رخصت بندوں کو دیتا ہے وہ رخصت کا فائدہ اٹھائیں. مطلب جب اللہ تعالیٰ نے بندے کی مشقت کا اعتبار کرتے ہوئے رخصت دی، اب بندہ اس کو استعمال نہ کرے تو مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسندیدہ نہیں. کیونکہ جس طرح ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، بالکل بات یہاں پر بھی ایسی ہی ہو رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی تم یہ کہہ رہا ہے کہ بندو 2 رکعت پڑھ لو 4 کی جگہ، آپ کہتے ہیں نہیں ہم 4 ہی پڑھ لیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس طرح یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رخصت سے اعراض کرے، منہ موڑ لے. نص علیہ انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر نص ذکر کیا، اور یہ گویا کہ یہ بات صراحتاً کہہ دی کہ افضل ہے کہ آدمی قصر کرے. یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان زیر بحث رہا ہے کہ کیا قصر افضل ہے یا اتمام افضل ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے کہ قصر ہی افضل ہے، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز. اب آدمی قصر کن نمازوں میں کرے اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے. اب جب اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے افضل قرار دیا تو اس کی وجہ یہ تھی یا اس کی دلیل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قصر کا اہتمام کیا، خلفائے راشدین نے آپ کے بعد اس کا اہتمام کیا، صحابہ کرام نے اہتمام کیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اسی لیے اس پر عمل کرنا چاہیے. کن نمازوں میں قصر ہوگا یا کن نمازوں میں مسافر قصر کرے گا؟ قصر جو رباعی نمازیں ہیں، ظہر اور عصر ہے، مغرب کیا کہتے ہیں، مغرب تو اپنے طور پہ برابر 3 کی 3 رکعت پڑھی جائے گی. عشاء جو 4 رکعت ہے اس میں 2 رکعت پڑھیں گے. تو جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اسی میں 2 رکعت تخفیف ہوئی. باقی فجر کی نماز بھی اپنے طور پہ 2 رکعت ہے، مغرب کی نماز بھی 3 رکعت ہے. اب یہاں پر دیکھیے لمن نوى سفرا مباحا، جس آدمی نے سفر مباح کی نیت کی ہے.
ऐ लैस हरामन, यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं बाज किताबों के नुस्खे में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वो दलील तालिब लिनैल मतालिब शेख मरई बिन यूसुफ अल करमी, उनकी इबारतें हैं, उनका नस है, उनका मतन है। ये जो ऐ लैस हरामन, ये सब शरह जो है ये शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान की है। लिमन नवा सफरन मुबाहन, इससे ये मसला साबित करना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी किसी हराम काम के लिए सफर कर रहा है तो गोया कि वो इस रुखसत से फायदा नहीं उठा सकता, ये वो मसला जिक्र करना चाह रहे हैं। वला मकरूहन, और इसी तरह कोई नापसंदीदा सफर कर रहा है तो वो भी आदमी इस तरह उसके लिए फायदा नहीं उठा सकता। अच्छा, लिमन नवा सफरन मुबाहन वाजिबन खाना कहज व जिहाद मुतअय्यनैन औ मसनूनन का ज़ियारत रहिम औ मुस्तवा तरफ़ैन का तिजारा। सफर की कई किस्में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। एक तो हराम जो मासियत के लिए कर रहा है, आदमी चोरी करने के लिए सफर करके जा रहा है और कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है, तो वो आदमी इस रुखसत से फायदा नहीं उठाएगा। लेकिन जो आदमी हज के लिए जा रहा है या जिहाद के लिए जा रहा है, जो उसके ऊपर फर्ज हुआ है, जिहाद हो या हज हो, फर्ज है, तो इस तरह यानी कि सफर की नौइयत वो उसकी तहदीद कर रहे हैं कि कभी सफर आपका वाजिब भी हो सकता है, जैसे आपके ऊपर हज फर्ज है तो आप पर सफर करना वाजिब है, और कभी मसनून भी हो सकता है, जैसे आप किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। तो ये सफर की किस्में बता रहे हैं, चाहे वो सफर वाजिब हो, सफर मुस्तहब हो, या मुस्तवा तरफ़ैन, दो तरफ भी बराबर का मतलब ये कि वो ना मकरूह है ना वो अफजल है, इसी को मुस्तवा तरफ़ैन कहते हैं, यानी जायज तिजारत के लिए सफर करना। तो ऐसा आदमी सफर के जो सहूलतें हैं उनसे फायदा उठा सकता है। अब इसके बाद कह रहे हैं, देखिए, लिमहल्लिन मुअय्यनिन फला युक़स्सरु हाइमुन ला यदरी ऐन यذهب। अगर किसी मुतय्यन जगह के वो सफर कर रहा है, उसका इरादा रखता है, तो ऐसा आदमी ही सफर के फायदे उठाएगा, सफर की रुखसत से फायदा उठाएगा। वरना यहाँ कह रहे हैं फला युक़स्सिरु हाइमुन ला यदरी ऐन यذهب। हाइम कहते हैं अलमुत्तजिह अला वजह, बस मुंह उठा के चल दिए, जिधर मुंह क्या कहते हैं, जिधर सिंह समाये उधर चल दिए, कहते हैं। उनका कोई न मकसद है न कहीं जाना तय है, बस निकल गए ऐसे ही। अब मसलन जो है कोई आदमी शिकार के लिए जा रहा है, उनको शिकार से मतलब है, हो सकता है शिकार जो है 40 किलोमीटर पर भी मिल जाए, हो सकता है 80 किलोमीटर पर भी मिले, बस भाग रहे हैं, कोई तय ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं ऐसा आदमी जो कोई खास मंजिल तय करके सफर का इरादा नहीं रखता है, वो आदमी कसर नहीं करेगा। ये फ़िक़्ह हम्बली के एतबार से कह रहे हैं। वला साइहुन ला यक़सिदु मकानन मुअय्यनन व नहविहिमा, बस घूमते फिरते घूम रहे हैं कहीं भी जंगल में, समंदर की सैर पर गए, बस चलते रहे हैं, कोई खास मकसद नहीं है। अब काफी लंबी मसाफत घूम रहे हैं, तो फिर ऐसा आदमी भी ये कह रहे हैं कि सफर का फायदा नहीं उठाएगा, कसर नहीं करेगा। अब उसके बाद, इस मसले के बाद वो आते हैं मसाफत की तरफ के कितनी मसाफत है जिस पर कसर होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इसमें ये देख लें कि जो आदमी मसलन गुम हो गया, अब उसकी कोई मंजिल तय नहीं है, और इसी तरह मान लें कि कोई आदमी अपने किसी जानवर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है, जानवर गुम हो जाते हैं सहरा में, तो अब वो निकल गया, अब पता नहीं वो कितने किलोमीटर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लेकिन वो तो जा रहा है, सफर का उसका इरादा नहीं, लेकिन फिर भी वो एक लंबी मसाफत तय कर रहा है। तो फिर ऐसा आदमी
راجح قول یہی ہے کہ ایسا آدمی بھی سفر کی سہولتیں یا فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح جو اس سے پہلے جو بات آئی لمن نوى سفرا مباحا، کہ جو آدمی سفر مباح کر رہا ہے اسی کے لیے جائز ہے، جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ عاصی بھی، نافرمان بھی، یا جو آدمی کسی خاص سفر کی نیت نہیں کیا ہے وہ بھی، سارے لوگ سفر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں مشائخ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ راجح ہے، یا یوں کہیے کہ یہی بات راجح ہے، کوئی بھی آدمی سفر کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا توجہ ہو سکتی ہے مشائخ، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جی، کیوں کہہ رہے ہیں مشائخ یہ بات؟ اس کو راجح بتانے کی وجہ یا کوئی ایک توجہ؟ جی، قرآن مجید میں جو کیا سفر کا لفظ سوال؟ مطلق ہوگا، اس لیے جو ہے نا ایسا کہہ رہے ہوں گے، وہاں پہ کوئی خاص وجہ نہیں بتائی کہ جو ہے نا اس لیے نکلنا، اس لیے نکلنا، بس فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس مطلق ہے۔ جی، اور کوئی کچھ بول رہے تھے؟ جی، چلیے، بہرحال جواب تو آ گیا ہے۔ شیخ نے کہا کہ سفر مطلق ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عاصی کے لیے اس کو ناجائز قرار دیا ہوا ایسا کوئی نص نہیں ہے قرآن کریم میں، احادیث میں، بس مسافر کی بات کہی گئی ہے، چاہے وہ ناپسندیدہ سفر کر رہا ہے پھر بھی وہ مسافر تو ہے ہی۔ اور اسی طرح جس کا کوئی مقصد متعین نہیں ہے پھر وہ بھی سفر تو کر ہی رہا ہے۔ اور کچھ لوگ سائح ہوتے ہیں، گھومنا، اور کچھ لوگ عہد اول میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو متوکلین کہتے تھے، اپنے آپ کو متوکلین کہتے تھے، اور ان کو سائق بھی کہا جاتا تھا۔ متوکلین کیا ہے؟ یہ لوگ بس جدھر موقع ملا بس جدھر مناسب سمجھے نکل پڑے، کوئی خاص متعین جگہ نہیں، لوگ جو دیے وہ کھا لیے، اس طرح محنت مزدوری سے یہ لوگ آنگ چراتے تھے، یا یوں کہیں کہ بھاگتے تھے۔ ایسے لوگوں کو سائق کہا جاتا تھا، جبکہ موجودہ اصطلاح میں سائق تو وہ ہے جو پابندی سے کسی جگہ نوکری کر رہا ہو ڈرائیونگ کی، جبکہ پرانے دور میں فقہا نے سائق اس کو کہا ہے جو کام وغیرہ کیے بغیر کہیں بھی بس گھومنے پھرنے کا عادی بن گیا ہو، اور خاص کر یہ ایسے لوگوں کی جماعت تھی جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم متوکلین ہیں۔ تو اس کو خاص طور پر سائق کہا جاتا تھا پرانے دور میں۔ سائق ہو یا سائح ہو یا تائہ ہو، سارے ہی لوگ اس سفر کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ بات یہاں تک مکمل ہوئی۔ اس کے بعد یبلغ 16 فرسخا تقریبا وہی 4 برد، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسافت جو قصر کی ہوگی وہ 16 فرسخ ہوگی۔ 16 فرسخ کس کو کہتے ہیں؟ 4 برد کو 16 فرسخ کہتے ہیں۔ ایک برد کا 4 فرسخ ہوتا ہے۔ برد اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک منزل جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جب چلتا تھا تو ایک دن میں ایک منزل مکمل کرتا۔ منزل کیا ہے؟ ہم یوں کہہ لیں کہ بھائی یہ 20 کلومیٹر ایک منزل
हुआ करती थी। पुराने ज़माने में आदमी जब चलता था तो करीब 20 किलोमीटर तक आदमी ये तय करके निकलता कि बस वहां जाके फिर 20 किलोमीटर के बाद आराम करना है। तो ये अगर उसको 20x4 आप कर ले तो ये हो जाएंगे 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर हिसाब जो है फरसख का दे रहे हैं, 16 फरसख। एक बुर्द में 4 फरसख, 4x4 16 फरसख। ये फरसख क्या चीज है? एक फरसख 3 मील का होता है, एक फरसख 3 मील का होता है। तो इस तरह 16 को 3 से आप ज़रब देंगे तो 48 मील। 48 मील कसर करने के लिए ये मसाफत। अच्छा, मील कितना होता है? 1.25 किलोमीटर के बराबर 1 मील होता है, करीब करीब। उसमें भी इख्तिलाफ है, कोई 1.25 किलोमीटर, कोई 1609 मीटर पर कहते हैं कि 1 मील होता है। बहरकैफ उसका एक मोटा हिसाब ऐसा है कि 3 मील 5 किलोमीटर, 3 मील 5 किलोमीटर। तो इस एतबार से 48 मील हो जाते हैं 80 किलोमीटर। 48 मील 80 किलोमीटर हो जाते हैं। अब उसका वही हमने मोटा हिसाब कहा कि आप एक बुर्द या एक मंजिल को आप 20 मान लें, 4 मंजिल, तो मतलब ये कि 80 किलोमीटर। उसके लिए इस्तिदलाल जो किया है देखिए, वही यौमानी कासिदानी फी ज़मनिन मुअतदिलिन बिसैर अल-अथक़ाल व दबीब अल-अक़दाम। कोई ऊंट बोझ लेकर चल रहा हो, मुअतदिल चाल चले, तो ये एतबार होगा उसी का कि एक दिन में कितना वो चलेगा। एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर चलेगा। एक मंजिल भी अगर आप मान लें 20 किलोमीटर की, तो 2 मंजिल एक दिन में वो अगर चलेगा, 2 बुर्द, तो हो जाएंगे 40 किलोमीटर। जो आपने यहाँ पर इबारत देखी है, यौमानी कासिदानी, 2 दिन का मतलब ये कि 2 दिन की मसाफत। उमूमन पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, एक दिन अगर आप चलते तो 40 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा सफर करते, रात सफर कर दे तो फिर वो भी 40 किलोमीटर, ऐसा ही एतबार था। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने का जो सफर तय किया, कितने दिन में किया मुशायख? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत किए, कितने दिन लगे? जी मुशायख, आप जी कोई कुछ बोल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन में ये मसाफत तय की, 10 दिन में ये मसाफत तय की। तो 10 दिन का मतलब ये है कि 40 × 10 400 किलोमीटर, करीब करीब ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मान लें कि 36 किलोमीटर चले हैं एक दिन में, तो 36 × 10 360, मक्का से मदीना की मसाफत 360 किलोमीटर की है। तो ये एतबार है, इसके लिए इतने दिन मतलूब होते थे। अब उसी से इस्तेदलाल किया है हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस से, या अहल मक्का, या हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के कौल से, मक्के वालों से कह रहे हैं, ला तुक़स्सिरु फी अक़ल्ल मिन 4 बुर्द, 4 बरीद। वो बुर्द जो है असल में जमा है बरीद की। 4 बरीद से कम में तुम लोग कसर मत किया करो। मसलन मक्का से अस्फान तक, यहाँ तक की मसाफत पर अस्फान तक तुम पहुंच जाओ तो फिर उसके बाद तुम कसर कर सकते हो। मक्का से मदीना की क्या कहते हैं, मक्के से अस्फान की मसाफत है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर से कम में तुम ना किया करो। और हजरत इब्न अब्बास और हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का अमल यही बतलाता है कि वो 4 बरीद से कम में कसर नहीं किया करते। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो बाब बांधा है, बाबुन फी कम युक़स्सरु अस्सलाह वसम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन व लैलतन सफरन, कितने में कसर इंसान को करना चाहिए, ये बाब आपने बांधा। और उसके अंदर जो हदीस लाए हैं, सम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन
वलैलतन सफरा, एक दिन एक रात, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर कहा। तो मतलब ये कि एक दिन जो इंसान चला करता था वो 40 किलोमीटर या 2 बरीद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैलतन यौमन व लैलतन, एक दिन एक रात का मतलब ये 4 बुर्द हो गए, यानी एक बरीद 20 किलोमीटर तो 4 80 किलोमीटर हो गए। तो 80 किलोमीटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को सफर कहा है, उससे कम को सफर नहीं कहा। ये इमाम बुखारी का इस्तिदलाल है। इमाम इब्न अब्बास, हजरत इब्न अब्बास, हजरत इब्न उमर कसर भी क्या करते थे और रोजा इफ्तार भी क्या करते थे 4 बरीद में या 4 मंजिल में। वो 16 फरसख यानी 16 फरसख होता है, उसको मैंने मील 48 मील बतलाया और किलोमीटर के एतबार से 80 किलोमीटर बतलाया। लजना का भी यही फतवा है, लजना दाइमा का फतवा यही है कि 80 किलोमीटर पे आदमी सफर की सहूलत से फायदा उठा सकता है, रोजा इफ्तार कर सकता है और रोज नमाज में कसर कर सकता है। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ये बात कही है कि बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने से इतने किलोमीटर पर ही आप ये करो, 80 किलोमीटर, फिर अगर 79 है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर जाते या दूर जाने का इरादा रखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के इरादे से असर किया करते। तो इसको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि उर्फ में जिसको सफर कहा जाए वो सफर कहलाएगा। अब मसलन जो है आदमी ड्यूटी के लिए मुख्तसर मसाफत जाता है, कोई 30-40 किलोमीटर जाता है, लोग उसको सफर ही नहीं समझते, वो तो एक मामूल बन गया है। अब आदमी कहीं सफर के इरादे से निकलता है 70-80 किलोमीटर, तो उसको कहा जाता है कि वाकई वो सफर के लिए निकला है। तो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा उर्फ में जिसको सफर माना जाए उसी में सफर की सहूलतों से फायदा उठाया जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं इज़ा फारक़ बुयूत क़रियतिही अल-आमिरा, सफर की सहूलतों से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप अपने शहर की आबादी, गांव की आबादी से आप बाहर निकल आए। लिअन्नहु क़ब्ल ज़ालिका ला यकूनु ज़ारिबन फ़िल अर्ज़ि वला मुसाफ़िरा वलिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा कान युक़स्सिरु इज़ा इर्तहल। जब आदमी अपने घर ही में हो, मसलन जो है आपकी फ्लाइट है, आप निकलना चाह रहे हैं, या मसलन गाड़ी से भी निकलना चाह रहे हैं, अभी ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ है, आप अब निकलना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप जब तक गांव के बाहर न निकल जाएं उस वक्त तक आप ज़ोहर असर मिला के नहीं पढ़ सकते। आप गांव से बाहर निकल जाएं या एयरपोर्ट भी आपका इतना दूर हो आपके घर से कि गोया आपके घर की आबादी, आपके इलाके की आबादी से आप बहुत दूर निकल आए, तो फिर आप एयरपोर्ट पे भी आप कसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से बिल्कुल करीबी हैं और उस इलाके में अभी हैं तो उस वक्त आपको कसर नहीं करना चाहिए। ये इस हदीस से इस्तेदलाल करके ये मसला मुस्तमद किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर वो बात शायद आएगी भी आगे हदीस में, हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का रवाना होने वाले थे, आपने मुकम्मल नमाज पढ़ी मदीने में। वही जब जुल्हुलैफा पहुंच गए, मदीने से बाहर पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कसर किया। इससे पता चलता है कि जब आप आबादी से बाहर चले जाएं तो उसके बाद आप सफर की सहूलतें उससे फायदा उठा सकते हैं। यही बात इसी हदीस के रोशनी में कही गई है। वला युईदु मन क़स्सर थुम्मा रजअ क़ब्ल इस्तिकमाल अल-मसाफ़ति लिअन्न अल-मुअतबर निय्यतु अल-मसाफ़ा ला हक़ीक़तुहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कसर कर लिया, फिर वो मसाफत पूरी होने से पहले वापस आ गया, तो क्या उसको वापस पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी? मसलन जो है आप यहाँ से अबू समरा बॉर्डर चले गए और
जा रहे थे, रास्ते में आप 20-25 किलोमीटर के बाद किसी पेट्रोल पंप में नमाज पढ़ ली, कसर कर लिया आप इसी नीयत से कि सफर जारी रहना है। नमाज पढ़ के आप फारिग हुए, थोड़ा आगे बढ़े कि फोन आया, नहीं आप नहीं जा सकते, आपका कोई भी मसला है, कुछ कागजात में कुछ कमी है या कोई और मसला है, तो आपको वापस आना पड़ा। आप वापस आ गए, तो क्या अब आप जो नमाज कसर पढ़े थे, आप मसाफत उसको तय नहीं किए 80 किलोमीटर को, तो क्या उसको वापस आप दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे? दोहरा लेंगे शेख। और कोई जवाब? जी नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे, ये वही कहना चाह रहे हैं, वला युईदु मन क़स्सर, दोहराएंगे नहीं। जो आदमी कसर कर लिया वो नहीं दोहराएगा। सुम्मा रजअ क़ब्ल इस्तिकमाल अल मसाफा, वो अपनी मसाफत कसर मुकम्मल करने से पहले वापस हो गया, क्योंकि मुअतबर क्या चीज़ है, मसाफत की नीयत। आपका तो इरादा था कि आप 1000-1500 किलोमीटर उम्रे तक के लिए आप सफ़र करना है, लेकिन अचानक आपका ये मसला हो गया तो आप वापस आ गए। तो असल में आपकी नीयत ये थी, आपकी सफ़र ही की थी, बीच में कोई रुकावट आ गई तो आप वापस हो गए। तो इस एतबार से आपको वापस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं वयल्ज़मुहु इत्मामु स्सलाति इन दखल वक्तुहा व हुवा फिल हदर, अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं लेकिन अभी आप हज़र ही में हैं, आप सफ़र शुरू नहीं किए हैं, तो ऐसी सूरत में आपको नमाज मुकम्मल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका सफ़र शुरू नहीं हुआ है। लिअन्नहा वजबत ताम्मतन, क्योंकि आप जब सफ़र शुरू नहीं किए हैं, ऐसी सूरत में आप पर नमाज वाजिब हो गई, तो मुकम्मल वाजिब हुई। ये इसके लिए भी वही हदीस दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में 4 रकात ज़ोहर पढ़ी, फिर जब असर की नमाज का वक्त आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर जुल्हुलैफा पहुंच गए थे, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ी। तो इससे पता चलता है कि अगर नमाज का वक्त हो जाए, आप सफ़र शुरू नहीं किए थे, तो आपको मुकम्मल पढ़नी पड़ेगी। जब आप सफ़र शुरू कर दें, आप अपने गांव बस्ती की आबादी से बाहर निकल आए, तो फिर आप कसर कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद ये हल्के में मजीद आगे औसल्ला खल्फ मन युतिम यहाँ से पढ़ते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।